کیا وجہ ہے کہ جب بھی عورت کسی بھی زیادتی کو پبلک میں بیان کر ہی دیتی ہے اگر، کیوں اس پہ یقین نہیں کیا جاتا؟ جو پیور جنگل کی نفسیات ہے اس سے باہر نہیں آئے، آنے والی نسلیں ہم پہ ہنسیں گی. ڈو یو تھنک کہ یہ مردوں میں کہیں جبلی طور پہ سب میں ہے؟ Whether it's Africa or it's America, it's the church or the mosque or the temple, it has been here for thousands of years, and we as human beings. ان کے سامنے ان کے شوہر افیئرس چلا رہے ہیں بچیاں کام کرنے والیوں کے ساتھ. سیگریگیشن جو ہے وہ مجھے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there is something to hide. مبشر لقمان تھا اور وہ محسن بیگ تھا. انہوں نے کہا تھا 16 سال کی لڑکی سے اپنی شادی کر لوں گا، مجھے غصہ نہ دلاؤ. اور مولانا صاحب نے اس کے بعد کہا تھا کہ میں 10 سال کے بچوں کی شادی کروں. یہ جیلم سے شروع ہوتی ہیں، نام لینا شروع کروں، گجر خان تک جاتی ہیں. گجر خان سے آگے بری امام آتا ہے، بری امام سے آگے پنجر پیر آتا ہے، باراکو والا. یہ انفارمر ہیں، پنجابی میں ہم کہتے ہیں مجھا نہیں مجھا بہنا ہوتی ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹوڈیز پوڈ کاسٹ. جب سے یہ ایپسٹین کیس آیا ہے اور بہت زیادہ بات ہونا شروع ہوئی کہ لوگ ایٹ دا پلیس آف پاور کس طرح عورت کو اور کمزور طبقے کو، جس میں بچے بھی آتے ہیں، سبجوگیٹ کرتے ہیں، مینیپولیٹ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ یہ چیزیں جو اب ہم اتنا اس پہ بول رہے ہیں اور اتنی باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے خطے میں تو یہ چیزیں سارٹ آف لیگل ہیں، اور ہم تو ان کو باقاعدہ کلچرلی، مورلی، ریلیجسلی تینوں لحاظ سے پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے بھی ہوتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور ایکسیپٹ یہاں تک کرتے ہیں کہ اب عورتیں بھی کہتی ہیں شاید یہی ہے سب کچھ ہماری قسمت میں. کیوں نہیں کچھ ابھی تک چینج ہو پایا؟ کہاں ہم سے غلطی ہوئی؟ اور اسپیشلی اگر ہم پاکستان کو تھرو دی لینز آف ورلڈ اگر دیکھیں تو ہمارا حال افغانستان جیسا ہے، جو کہ سب سے آخری نمبر پہ ہے جنڈر گیپ اور عورتوں کی رائٹس کو محدود کرنے میں. ہم اس سے ایک نمبر اوپر ہیں. انڈیا ہم سے کافی بہتر ہے. ایون بنگلہ دیش اور یہ مسلم کنٹری ہے وہ بھی اس سے بہتر ہے. اور اس خطے میں افغانستان اور پاکستان کیا وجہ ہے، کیا ہوا، یہی ڈسکس کرنے کا آج میرا دل تھا. اور میرے خیال میں وجاہت مسعود صاحب سے بہتر سوشل سائنٹسٹ میں انہیں کہوں یا ان کا جو مشاہدہ ہے، مجھے اس سے بہتر اس گفتگو کے لیے کوئی اور انسان نہیں موضوع لگا. تو ان سے میں نے درخواست کی، اور تھینک یو سو مچ وجاہت صاحب کہ آپ میری ایک کال پہ یہ شو کرنے آ گئے. اینڈ آئی ول نیور forget your favor and honestly I am honored. تھینک یو سو مچ. تو وجاہت مسعود صاحب، یہ ایپسٹین فائلز میں جو اتنی خبریں اب نکل رہی ہیں اور میں دیکھ رہی ہوں پوری دنیا اتنا شور مچا رہی ہے کہ کیسے بچیوں کو، انڈر ایج بچیوں کو سبجوگیٹ کیا گیا فرام دی پلیس آف پاور، اور یہ مرد کی جبلت میں یہ خواہش کہ کم عمر بچیوں کی خواہش رکھنا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو یہ دنیا چلا رہے ہیں، ان کا لیول وہ ہے انٹلیکٹ کا، کامیابی کا. اور فطری جبلی طور پہ اگر ایسے لوگ بھی اپنے آپ کو نہیں بدل سکے تو پھر ہم پوری دنیا کا کیا رونا رو رہے ہیں؟ کیونکہ یہی سب کچھ جو آج ہم اس پہ اتنا بول رہے ہیں، اور یہ خودکشی کر رہے ہیں لوگ. ایون وہ جو اینڈریو صاحب ہیں ان کو بھی سزا ہو گئی ہے، بہت سارے اریسٹ ہوئے. اب اللہ کرے سزا بھی ہو جائے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، چلے ہم یہ بھی کہہ لیں. لیکن ہمارے خطے میں تو اس قسم کی سبجوگیشن یہ تو لیگل بھی ہے بہت سارے طریقوں سے. ہماری سوسائٹی سے سپورٹ بھی کرتی ہے. ہماری جوڈیشری نے ابھی تک ایسے فیصلے کیے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ کرنا مردوں کے لیے نہ صرف آسان بھی ہوا ہے بلکہ کوئی خوف و خطر بھی نہیں ہے. آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ کہاں پہ لے کے آنا چاہ رہی ہوں گفتگو کو.
تو پلیز مجھے بتائیں گے. If you allow, may I delve a little into our history? A little before you and me, our generation was born. ایک آرڈیننس اس ملک میں آیا تھا 1962 کا, ایوب خان لے کے آئے تھے. شریف کمیشن کی رپورٹ کی سفارشات کی روشنی میں شریف کمیشن بٹھایا گیا تھا 1955 میں, اور 62 میں یہ فیملی لاس آرڈیننس آیا ہے. اس ملک میں ایک تاریخ ہے کہ, اور جو آپ نے تو انٹرنیشنل بات کی ہے نا, میں اس کے بارے میں بھی سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. دیکھیے, واٹ از دا سائیکالوجی بیہائنڈ the bad words which they use for young girls, you know, goes back to pedophilia, nubile, پتہ نہیں کیا کیا کیا. میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ this has got nothing to do with the normal sexuality. It's a question of authority, being beyond accountability. جس سوسائٹی میں, جس دنیا میں ہم رہتے ہیں, اس میں میری رائے میں اگر ہم ذرا سا کھرچیں تو اندر اس کے وہی گند ہے پوری دنیا میں. اور دس از اباؤٹ پاور اینڈ اٹس ایکسرسائز. دس از نتھنگ ٹو ڈو وتھ نارمل ہیومن desire or gratification, nothing. It is about power, it is about exhibition of being above the law. آپ اس کی بات کر رہے ہیں, کیا ہمیں مڈل ایسٹ میں جو مونارکیز ہیں ان کے بارے میں علم نہیں؟ کیا ہمیں یاد نہیں کہ اسٹالن کا ایک KGB کا ہیڈ ہوتا تھا بیریا, when he was taken off from Politburo and then executed by Khrushchev in 1953. There were around 350 complaints about him concerning young girls abducted from schools. It was Moscow. It was Soviet Union. Don't we know about Chairman Mao in China? انہوں نے کیا کیا تھا؟ You must have gone through that little book called Private Life of Chairman Mao, written by his own doctor. Okay. His own doctor. He was a pervert. I have a clear understanding that dictatorship, authoritarianism, it has a direct link with perversion. Why? Because when you've got everything, when you are at the summit of your power, when you are not accountable, you cannot stay normal. Then you need to spice up the things. بوریت؟ بوریت نہیں, اقتدار کی چوٹی پہ, سمٹ پہ تنہائی بہت ہوتی ہے. You can't trust anybody. And you are looking for you have to, you need appetizers to spice up your fun hours. نہیں, but why not women of an appropriate age? Why they get attracted to childlike that is fetish. girls? That is fetish. That is fetish. نہیں, but do you think کہ یہ مردوں میں کہیں جبلی طور پہ سب میں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں, اب تو مائیں تھوڑی سی سمجھدار ہو گئی ہیں, بچوں کا بہت دھیان رکھتی ہیں. اور جب میں بچہ کہتی ہوں تو اس میں کوئی جینڈر نہیں ہے, بیکاز اتنا ہی ایک لڑکا بچہ اور لڑکی بچی انسیف ہے. تقریباً ہماری جنریشن تک ہر بچی بچپن میں کبھی نہ کبھی کسی حد تک مولیسٹ ہوئی ہے. And boys as well. بوائز بھی ہوئے ہوں گے, I can vouch for that. لیکن یہ سمجھ, آپ سوچیں اتنے ہی مرد ہوں گے نا جو کر رہے ہوں گے. یہی تھے. اگر ہر کوئی ہو رہا ہے تو کیا یہ فطری فیٹش ہمارے مردوں کے جینیٹک کوڈ میں ہے؟ اٹس ٹیسٹوسٹیرون اور واٹ؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں تھوڑا سا مشاہدہ عرض کروں. جہاں پہ ایکسیس نہیں ہوتی, وائی آئی ایم personally, my experience is I'm very afraid of families and homes to visit where ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے, جس کے پیچھے سے ایک نوک ہوتی ہے اور چائے کے 2 کپ جو ہے بسکٹ کے ساتھ اندر آ جاتے ہیں. Ladies of the house are not allowed and men don't have access. Right? I understand کہ there are certain parts of the house which are private. وہ ایک بالکل اور چیز ہے. آپ کے جیسے بیڈ روم ہوتا ہے, چاہے وہ کسی کا بھی ہو. That is private. That is a different story. بٹ یہ کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں اور وہاں پہ ڈرائنگ روم میں مردوں کی جو ٹولی ہے وہ لگ بیٹھ گئی ہے.
خواتین کی ٹولی لا کے بیٹھ گئی Segregation. دو سیگریگیشن جو ہے وہ مجھے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ ٹو ہائڈ. Yeah. دیر از سم تھنگ ٹو ہائڈ. ان ڈارکنیس کرائمس ٹیک پلیس. اور یہ جو پاور کا ایسی سطح ہونا ہے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ممکن نہ ہو سکے. ویدر اٹس افریقہ اور اٹس امیریکا, اٹس دا چرچ اور دا ماسک اور دا ٹیمپل. It has been here for thousands of years and we as human beings ابھی ہم جنگل سے اور اس کی جو پیور جنگل کی نفسیات ہے اس سے باہر نہیں آئے. It's an display of power. یہ ہے. اور ابھی ہم ذرا سا ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں نا. ابھی تو ہم نے تہذیب کی دہلیز پہ ایک پاؤں رکھا ہے, باہر گلی میں کھڑے ہیں. I am very assured about it that maybe 50 years down the lane آنے والی نسلیں ہم پہ ہنسیں گی. یہ اس طرح کے لوگ تھے کہ ان کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا. ہمارے ملک میں ایک ملا ہے حمداللہ, اس نے کہا ہے کہ مجھے اگر غصہ آ گیا تو میں 16 سال کی لڑکی سے شادی کروں. انہوں نے کہا تھا 16 سال کی لڑکی سے اپنی شادی کر لوں گا, مجھے غصہ نہ دلاؤ. اور مولانا صاحب نے اس کے بعد کہا تھا کہ میں 10 سال کے بچوں کی شادی کروں. اٹ واز ان 1929. اب سے 98 سال پہلے محمد علی جناح stood up in the Imperial Legislative Council and he advocated, you know what, کہ مسلمان بچی کی شادی کی ایج 14 برس طے کر دی جائے. شاردا ایکٹ تھا اس وقت. 74 مولویوں نے فتویٰ دیا تھا محمد علی جناح کے خلاف اور ہزاروں بچیوں کے نکاح پڑھائے تھے. انہی کے باپ دادا تھے, میں ان کے ناموں کی فہرست دے سکتا ہوں. یہ حمداللہ جس گروپ سے ہے, جس مسلک سے ہے, آئی ایم لیسٹ بادر اباؤٹ کہ کون سا فرقہ کون سا مسلک, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ جمعیت علماء ہند ان کی جا کے جڑیں ملتی ہیں, اور اشرف علی تھانوی, اور اس میں یہ جو بریلویوں کے جماعت علی شاہ صاحب ہیں, یہ سب لوگ شامل تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ اٹس اے کانٹریکٹ. کانٹریکٹ ہیز ٹو بی کنسنسول. بالکل ٹھیک ہے. بوتھ پارٹیز اسٹینڈ ایکول اینڈ بوتھ پارٹیز آر الاؤڈ ٹو ڈیفائن دی ٹرمز آف دا کانٹریکٹ. تو وہ کیا شادیاں تھیں جو زبردست, جو 12 سال کی بچی کیا کاؤنسلنگ دے سکتی ہے. ہاؤ کین شی, وائی ڈو وی ہیو certain medical conditions so with such a high incidence in interior Sindh and in South Punjab? AIDS. Fistula. What's that? Fistula is a certain condition, pregnancy related disease in which a young girl loses control over her bladder. Oh my God. Oh, I got it. You got it? Yeah. تو یہ شیرشاہ, ڈاکٹر شیرشاہ سید ہیں وہاں کوہی گوٹ کراچی میں. ان کی بڑی اچھی فیملی ہے, 6 بھائی ہیں, 6 کے 6 ڈاکٹرز ہیں, اور وہ کرتے ہی فسٹولا کا علاج ہیں. اور اس طرح وہ خوفناک پر سے آئی واز آلویز اسٹانشڈ وین وزٹنگ سندھ. آئی ورکڈ اے لاٹ ان دا رورل سندھ اینڈ کے پی. میں حیران ہوتا تھا کہ ان میں سے ہر وہ سندھی دوست جس نے بی اے کیا ہے اس نے دوسری شادی کیوں کی. پہلی شادی تو اماں سائیں کے کہنے پہ کی تھی. اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس عمر میں ہوئی تھی اس میں دیر واز نو چارم فار دیم اینی لانگر. ایک بیمار خاتون جو ہے جو بالکل جس کے پاس سے گزرا نہیں جا سکتا, تو اس پہ کیا ہونا تھا. یہی ہمیں آج تک نہیں سمجھ پائے یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں آج تک نہیں سمجھ پائے کہ یہ کزن میرجز کیا ہیں. گڈ فرینڈ آف مائن, a very friend of long standing, perhaps more than 35 years. He arrived and he was talking about his daughter's marriage and he mentioned a cousin marriage. تو میں نے ایسی اشارہ دلانے کے لیے کہا کہ ذرا سوچ لیجیے کزن میرج ہے. لیکن ان کے رویے سے میں سمجھ گیا کہ ان کو سمجھانا اس لیے بیکار ہے کہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں. اور ان کو معیوب لگا ہوگا آپ کا یہ مشورہ دینا بھی. یہ انہوں نے اس کو اس سلیقے سے ذرا لپیٹا کہ مجھے اگلی دلیل دینے کا حوصلہ ہی نہیں ہوا. میں کیا کرتا اس میں. دوسرا چلیں ہم مولویوں پہ آتے ہیں. جب یہ لا
फैमिली प्लानिंग का जो भी लॉ आपने कहा 52 तो वो उसमें फैमिली लॉज वो 62 है। तो उसमें क्या थे मेन पॉइंट? मैं अर्ज किए देता हूँ। दो चीज़ें थी। एक तो ये था कि यतीम पोते का विरासत में हिस्सा होगा। यतीम पोते का, जिस बच्चे का बाप उसके दादा की मौजूदगी में मर जाए, इनके नज़दीक वो विरासत विच में, इज गुड। विच इज़ बैड। व्हाई? बे वो बच्चा जो यतीम हो गया, एक तो वो यतीम हो गया है, उसने अपने बाप को मर्डर तो नहीं किया छोटे बच्चे ने, उसे अपने दादा की जायदाद से क्यों महरूम किया जाए? ताए अच्छा नहीं होगा, नहीं होगा। ओ माय गॉड। और इसकी वजह? इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में HRCP और तनवीर जहां जो पिटिशनर हैं इस केस के खिलाफ, चूँकि हाई कोर्ट में हार चुके हैं, वहाँ जाके जब मुल्ला ये कहता है कि जी ये तो शरीयत है, तो वहाँ पे आपको पता है कि क्या होता है? सबकी बोलती बंद हो जाती है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। एक ये था। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, निकाह नामा होता है ना छपा हुआ, अब तो छपा हुआ आता है ना, उस पर एक आर्टिकल, उसकी एक शिक है 26। मुल्ला जो है वो अंधाधुंध उस पर लकीर फेरता है, इल्ला ये कि कोई आप जैसा समझदार बैठा हो और किसके मौलवी साहब ये क्या किया है आपने, आप कौन होते हैं हक के तलाक छीनने वाले? इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, उस जमाने में फैमिली लॉ ये बना कि यतीमों का हक भी खा लो, हाँ, और और ख़ातून को जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसको तलाक का हक भी नहीं देना। मतलब वो नहीं ले सकती, मैं जो मर्जी कर लूं। जी, उससे अगर तलाक लेना है तो वो अदालतों में जाए, वकीलों के ताने सुने, बुरी नज़रें देखे, कचहरियों में धक्के खाए। वो औरत जिसको हमने तालीम नहीं दिलाई, जिसकी मोबिलिटी नहीं है, जिसकी जो कोई रोज़गार नहीं है, शी इज़ नॉट पार्ट ऑफ द वर्किंग फोर्स, राइट, उसको तो जाना पड़े अदालत में और मुखालिफ वकील का उल्टा सीधा सुनना पड़े, ठीक है। और जो मर्द साहब हैं वो अगर मुँह से तलाक देना चाहें तो शाह बानो केस अगर आपको याद हो 1986 का, शी वॉज एन इंडियन लेडी, शाह बानो, 67 years of age, 1986 में। जी 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 जी, ठीक अभी है। इस पे फिल्म भी आई है। अब तो अब आई ना, हम तो थे स्टूडेंट और सबॉर्डिनेट मोहतरमा निगार की जी और उस फाउंडेशन में। ओके। उस वक्त से शाह बानो केस जो है ये इट वाज वेरी हॉट, राइट। तो अब आप एक खातून को जिससे आपने जो है ना वो आपने शादी की थी या नीली बार की भैंस खरीद के लाए थे? बिल्कुल। अब बच्चे पैदा किए उससे, आप वो जब आपके काम की नहीं रही तो आप जो है वो उसको घर से बाहर नहीं ना, आप कह रहे हैं कि हमें मेंटेनेंस नहीं देना, हमें नान नफका नहीं देना, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं है। अब उसके माँ बाप नहीं रहे, उसके भाइयों की अपनी फैमिलीज़ हैं, वो किसके पास जाएगी? मुझे ये समझ नहीं आती वजाहत साहब कि एक औरत जो आपके बच्चे जिसने पैदा किए हैं, आपको अपने गोल्डन ईयर्स भी दिए हैं, एक होती है ना औरत की तो बिल्कुल सही है, बायोलॉजिकल एज होती है, बिल्कुल सही है। जिस मर्जी वजह से आपकी तलाक हो गई, बच्चों को मर्द उस वक्त सपोर्ट करने से क्यों भागता है? ये हो कैसे सकता है? मेरे तो खैर साथ खुद ये हुआ है। I never saw my father or he never supported me. But now when I have my daughter and I see my husband, तो मुझे यकीन सा नहीं आता कि कोई भी मर्द अपने बच्चों को भूखा मारने के लिए कैसे तैयार हो जाता है। दिस इज़ वेयर कम्स द वर्ड एम्पावरमेंट। ये जो आपने इशारा दिया ना कि हम एक जनरेशन आगे आए हैं, तो भैया इनको 97 बरस लगे हैं कि ये 14 बरस से 16 बरस तक आया है मौलवी हम्दुल्ला। 97 बरस में ये 1 बरस बड़े हैं। दे विल कम टू 18 years of age, which is the age of informed consent। एक दूसरा जो मैं आपसे स्कूल में जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी ना कि आमरीत का और प्रवर्जन का और औरतों की सब्जुकेशन का गहरा ताल्लुक़ है। लेट्स गो बैक टू फरवरी 1979। 6 फरवरी को अदालत ने भुट्टो साहब की सज़ाए मौत की तस्दीक की थी और 10 फरवरी को एक मुल्ला होता था सऊदी अरब का, उसका नाम था मारूफत दवाबी। वो एक बना बनाया कानून लेके आया और ज़ियाउल हक ने 10 फरवरी 1979 को वो नाफज कर दिया। और हम लोग ज़ाहिर है छोटे थे, लेकिन इतना मालूम था कि ये क्या हो रहा है। हमें पता था कि 2 औरतें हैं जो ज़ियाउल हक को रजिस्ट कर रही हैं, एक का नाम नुसरत भुट्टो था, एक का नाम बेनज़ीर भुट्टो था। बेसिकली सोसाइटी में उन 2 को डिमोनाइज़ करना था, उनकी एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन टू लीड
वो चुभ रही थी आंखों में, और फिर क्या लॉ आया? हदूद ऑर्डिनेंस। और उसका सबसे बड़ा जो मसला था, जिसे अब हमने 2006 में कहीं जाके दूर किया, ये सफ़िया बीबी केस यही है कि द लॉ डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेप एंड एडल्ट्री। हमारा एक तरह से एक मंत्रा होता था कि द लॉ कॉन्फ्लेट्स रेप एंड फॉर्निकेशन। अब 4 मर्दों की गवाही होनी चाहिए। अब अच्छा, आप लड़कियों का हॉस्टल है, रात का वक्त है, ठीक है, वहाँ पे जो स्टाफ है, चौकीदार वगैरह, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, अंदर को किसी तरह से छलांग मार के आ गए। कहाँ से हम 4 मेल एडल्ट लेके आएंगे जो इतने बहादुर भी होंगे? उस वक्त वो क्राइम होते देखते रहे और अदालत में आके गवाही देंगे। और कौन किसके सामने करता है रेप? आज तक मैंने नहीं सुना कि 4 शरीफ लोगों को बिठा के रेप होता है। मैं अर्ज़ कर देता हूँ उसमें क्या हुआ। 1982 साहिवाल, एक नाबीना लड़की थी, सफ़िया बीबी, ठीक है, उसके एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉयर के बेटे ने उसको रिपीटेडली रेप किया। शी गॉट प्रेग्नेंट एंड व्हेन हर फादर फाइनली रिपोर्टेड दिस टू पुलिस, तो उन्होंने कहा कि वो मर तो मुकर गया और कोई गवाह मौजूद नहीं था, डीएनए तब नहीं था। इट वॉज 99, इट वॉज 1982 माइंड यू। अदालत ने उस बच्ची को 3 साल कैद, 30 करोड़ की सज़ा और जुर्माने की सज़ा दी, क्योंकि उसका जो ये बयान था, इट वॉज She couldn't prove it शी कुड नॉट आइडेंटिफाई द परपेट्रेटर्स because she was blind. शी वॉज ब्लाइंड। और उसका ये बयान कि मैं आउट ऑफ वेडलॉक प्रेग्नेंट हो गई हूँ, इट वॉज कंसिडर्ड एन एडमिशन, कन्फेशन of zina. ऑफ ज़िना। ये हमें 2006 में जाके, उस वक्त भी मुझे याद है 2006 में यही मुल्ला जो थे, ये उछल के असम्बली में, एज इफ़ के असम्बलियों में जो है ये वी अंडरस्टैंड दे आर सिटीजन्स, दे हैव अ राइट टू बी इलेक्टेड, लेकिन हम उनको तकदीस का वीटो देने के लिए तैयार नहीं हैं। अच्छा वजाद साहब, एक तो और ये मैं इसको ज़रा कर दूँ। अब उसमें हुआ क्या, दुनिया भर में इस पर शोर हुआ जी। और जो हमारा ब्रिटेन में सफ़ीर था, उससे सवालात किए गए, वो बेचारा ज़ीचे हो गया, वो क्या जवाब देता है? वैसे तो हमारे ऐसे डिप्लोमेट रहे हैं जिन पे अमेरिका वगैरह में भी हैरेसमेंट के इल्ज़ामात लगे हुए हैं, हमें मालूम है, हम उनके नाम इस वक्त नहीं ले चुके, ये 1982 की बात कर रहे हैं। उसने अपनी गवर्नमेंट से यहाँ पे बात की कि साहब ये क्या हो रहा है, क्या जवाब दूँ इनको, ये गोरे तो बहुत बेहया लोग हैं, ये सवाल कर रहे हैं सफ़िया बीबी पे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आसमान जहांगीर emerged as a human rights defender. जी बिल्कुल। 1984 में जब आदि गवाही का आया, तो उस वक्त जो है बहुत शोर हुआ था कि औरत की गवाही आती क्यों, और पता है हमें अपील करने के लिए क्या आर्गूमेंट किया गया, सिर्फ माली मामलात में याद दिलाने के लिए दूसरी खातून खड़ी होगी। बट 1990 में रशीदा पटेल केस में ये कहा गया कि हर मुकदमे में, वेदर इट्स फौजदारी और सिविल, औरत की गवाही आदि है। अच्छा, उन्होंने प्रेसिडेंट सेट कर दिया फैसला। इसीलिए हम कहते हैं ना कि साहब जो कानून आप आज बनाने जा रहे हैं, इसको ख्याल रखिए कि आपको कल को इसके नतायज भुगतना पड़ेंगे जी। आपके गले में ढोल पड़ जाएगा जिससे आप फिर अपने गले से निकाल नहीं पाएंगे। ये 1982 था सफ़िया बीबी वाला मामला। उसके बाद हमने इस किस्म के अनगिनत केसेस देखे। 1996 यहाँ एक फैमिली थी, बड़ी मारूफ और ताकतवर फैमिली, चूँकि ये जो मुल्ला हैं ये कोलैबोरेटर और इन्फार्मर होते हैं, इनकी सारी तफ्तीश वहीं से निकलती है। इनमें से जिसको आप चाहें मैं बयान कर सकता हूँ कि कौन किस किस का मुखबर रहा है, यहाँ तक बता सकते हैं कि इसका एक तारीखी रूट है। मतलब मैं बता देता हूँ, इन्वेडर आता था ना इधर से, नॉर्थ से, वेस्ट से, तो एक पारसाई का, तकवा का, बेहतर होने का, खानकाहों का सिलसिला मुल्तान तक जाता था और एक दिल्ली और अजमेर की तरफ निकलता था। ठीक है, बीच में एक पड़ाव लाहौर का था। जब से इस्लामाबाद और पिंडी जो है वो दारुल खिलाफा हुआ है, इक़्तिदार का मरकज़ा हुआ है, अब यही जो रूहानी ताकतें हैं ये जेलम से शुरू होती हैं। नाम लेना शुरू करूँ, गुजर खान तक जाती हैं।
गुजर खान से आगे बरी इमाम आता है, बरी इमाम से आगे पिंजर पीर आता है, बाराको वाला। ये इन्फॉर्मर हैं, ये कोलैबोरेटर हैं। कोलैबोरेटर के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ नहीं है। कोलैबोरेटर वो है जो हमारी कौम के दुश्मनों के साथ हाथ में लाता है, हमारे खिलाफ अपने मुफाद के लिए। ये कोलैबोरेटर हैं। ठीक है। तो मुखबरी किस तरह क्या हुई? मैं बता देता हूँ। बस लेट्स अस्यूम कि भाई आप एक आला अफसर हैं और मैं एक पीर साहब हूँ। आप मेरे पास आए, मैंने कहा इफ़्फ़त बीबी आप यहाँ कहाँ? हमारे कागज़ों में तो आप कमिश्नर सरगोदा हो चुकी हैं। अब इफ़्फ़त बीबी के भी मुँह में पानी आ रहा है कि हैं कमिश्नर सरगोदा मैं, ऐसी अच्छी पोस्टिंग मुझे मिल रही है। चूँकि दी फेलो विद दैट बिग बियर्ड एंड ऑल दैट अगरबत्तीज़ वगैरह, उसको इन्फॉर्म कर दिया गया है कि ये डिसीजन हो। ठीक है। वो 3 दिन के बाद जब उसको कागज़ मिलता है पोस्टिंग का और ट्रांसफ़र का, तो वो तो पीर साहब बन गए ना। हमने क्या उन पीरों को यहाँ लाहौर में पंजाबी का एक लफ्ज़ है खे खाते नहीं देखा? बिल्कुल देखा, बिल्कुल। हमने नहीं देखा कि ट्यूशन सेंटर्स में क्या हो रहा था। हमने नहीं देखा कि वो लोग जो है जो 46 साल बैंकों में मुलाजमत करते रहे, उन्हें 46 बरस बाद पता चला कि ये सूद की जॉब है और सूद हराम है। ये हुआ ना। उनमें से लोग मारे गए। अभी तक जो है वो ये इसमें ऐसे नहीं होता कि मैं आपसे मेथड टू दिस मैडनेस। इफ़्फ़त बीबी इस मुल्क में सहाफ़ी से लेके ब्यूरोक्रेट तक, पार्लियामेंटेरियन से लेके शोबिस के लोगों तक, अनफॉर्चुनेटली मुझे आज तक ऐसी ऑल मैन स्टैग गैदरिंग नहीं मिली वेयर वीमेन आर नॉट डिमोनाइज्ड एंड लुक डाउन अपॉन। वही लतीफ़े, वही वो सारा कुछ जो आप जानते हैं इस तरह अभी हो रहा है। अब तो जब से सोशल मीडिया आया है लोग ऐसे एक्सपोज हो रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं उनकी ज़हनी कंडीशन समझ आ जाती है कि ये फितरी तौर पे वाकई औरत को बहुत नापसंद करते हैं। नापसंद नहीं करते। दे हैव गॉट अ डिज़ायर रीचिंग द पॉइंट वेयर दे कांट कंट्रोल, वेयर दे डो नॉट हैव एनी फॉल्ट लाइन्स। जो मैं 1996 का किस्सा बता रहा हूँ, साइमा वहीद रोपड़ी, ये सऊदी अरब वालों के बहुत करीब थे। उस वक्त सऊदी अरब वाले जो है वो हमारे समधी होते थे। ठीक है। क्योंकि वो हमें पेनी फॉर पेनी देते थे अफगान जहाद के लिए। वो समधी हैं भी हैं। मुझे मैं वो फैमिली गिनवा सकता हूँ जिन्होंने 5-5 बेटियाँ उनको दी हुई हैं। जी जी जी। आप जानते हैं बेटियों का भी ब्याह हुआ है रॉयल फैमिली में। रॉयल फैमिली में ऐसे हुआ है ना। हाँ। वो अच्छे वक्तों की इन्वेस्टमेंट है, काम आ रही थी। तो वो रोपड़ी फैमिली जो है उन बच्ची ने फैसला कर लिया है कि मैं अपने ट्यूटर के साथ शादी करूँगी। पसंद की शादी। ठीक है। अब केस अदालत में चला गया क्योंकि उस बच्ची ने आगे पनाह ले ली। 10 साल। She was 22। राइट। बालिग थी। ठीक है। केस गया। अब कंटेंशन ये थी कोर्ट में कि लड़की का बाप ये कह रहा था, मुल्ला वहीद रोपड़ी, कि जी मैं वली हूँ, वली की इजाज़त के बगैर ये लड़की शादी नहीं कर सकती। ये केस वो हार गए। लेकिन एक मैंने कहा ना कि भैंसों की भैंसें बहनें होती हैं। पंजाबी में हम कहते हैं मजा नहीं मजा बहना होती हैं। तो चौधरी शुजात साहब बीच पे टपके और अरशद को और साइमा वहीद को नॉर्वे पहुंचा दिया। नॉर्वे वालों ने ठेका लिया हुआ है कि बुरे कानून हम बनाएं। उसके बाद 1999 में जो बहुत ही खौफनाक मामला था, वहाँ का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पेशावर का, उसका इलेक्टेड प्रेसिडेंट था सरवर। ठीक है। उसकी बेटी थी समिया, डाइवोर्सी। कज़न के साथ शादी हुई थी, नहीं चली फॉर वाट एवर रीज़न, नहीं चली। घर बाप के घर में आके बैठी हुई थी। शी डिसाइडेड टू मैरी, राइट। और बाप ने ज़ाहिर के वही माँ ने बाप ने फैसला किया कि इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी शादी की। रीज़न ये कि ये हमारी कॉन्सर्न से नहीं है। वो बच्ची ने यहाँ आके दस्तक में पनाह ली। दस्तक उस वक्त गुलबर्ग में होता था। आई रिकॉल कि क्या हुआ था, बिकॉज आई वॉज प्रेजेंट। 4 बहादुर लोग बाहर निकले थे और उनमें से फॉर्चुनेटली वन वॉज अ वुमन, हिना जिलानी। ये शबाब मिली वाले जो अब बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के मालिक हैं, ये हवा में फायरिंग कर रहे थे अगेंस्ट देम।
ٹھیک ہے, حملہ کرنا چاہتے تھے, پولیس نے ان کو روکا ہوا تھا اور ادھر سے جانے نہیں دے رہے تھے. جو 4 لوگ نکلے تھے میں نام گنوا رہا ہوں, ہنا جیلانی, حیدر فاروق مودودی صاحب, واو, ٹھیک ہے. تیسرا وہ ہمارا مرحوم دوست, بہت ہی بہادر بریلینٹ لائر محبوب احمد خان, اور اس کے پیچھے ایک سانولا سا دبلا سا لڑکا وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اور اندر ایک شخص جس کی اس وقت عمر جو ہے وہ 70 برس کے قریب تھی, 70 سے کچھ زیادہ تھی. اس کا نام آئی رحمان تھا. ہی واز سٹنگ آن اے چیئر, ٹھیک ہے, دیوار کے اندر, دروازے کے اندر, اور باہر جو ہے ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ہمیں کچا چبا جائیں. کہ ایک لڑکی جو طلاق یافتہ ہے, یس, دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہے, یس, اور آنر کلنگ تھی. اس کی ماں ملنے کے لیے آئی بچی سے, ظاہر ہے شی ہیڈ اے رائٹ کہ وہ ایسے تو اتنے کیسز ہیں. اس طرح کے, تو اتنے کیسز ہیں. ہنا جیلانی یہ بیٹھی ہوئی ہیں, بچی کو لا کے بٹھایا گیا ہے, ماں بیٹھی ہے. چونکہ وہ ماں اندر آئی ہے تو کسی کو نہیں پتا کہ ساتھ کون آیا کون نہیں آیا. ایچ صاحب جانتے ہیں, لبرٹی کین اپوزٹ چارٹرڈ بینک کے اوپر والی منزل پہ. وہ بندہ اندر داخل ہوا, اس نے سیدھی اس بچی کے کن پٹی میں گولی ماری ہے. سمیہ سرور اس کا نام تھا, رائٹ. اور اس نے جب دوسری گولی چلانا چاہی تو عین اس وقت چونکہ وہاں سیکورٹی سسٹم تھا تو ہنا جیلانی جھکی ہیں اس بٹن کو دبانے کے لیے جو سیکورٹی کو بلانے کے لیے تھا, اور گولی ان کے سر کے اوپر سے گزر کے دیوار میں جا کے لگی ہے. اور وہ بندہ بھاگا ہے تو جو سیکورٹی گارڈ باہر کھڑا تھا اس نے اس کو مارا ہے, اس سیڑھیوں میں گرا ہے. کوئی سزا کسی کو نہیں ہوئی. بچی کی ماں واز کمپلیسٹ, وہ لیتی آئی تھی, اور اس لیے معافی دے دیں کہ وہ جو آنر کلنگ ہے اس میں مدعی بن جائے. اگر ہم اب اس پہ ایک اگلا مسئلہ آ رہا ہے کہ ساس دیت کا معاملہ آیا تو ہم نے اس پہ احتجاج کیا. ہم نے کہا کہ ایک شہری جو ہے وہ امانت ہے ریاست کی. بالکل, میں اپنی بہن کا سیل ڈیڈ لیے نہیں پھرتا, میں اس کا مالک نہیں ہوں, یا اپنی بیٹی کا میں مالک نہیں ہوں. شی از اے سٹیزن ان ہر اون رائٹ ود آل دا رائٹس, شی از ایکول. ایسے ہی تھا نا. یہ جو آپ کے ساس اور دیت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ شہریوں کو کسی کی ملکیت بنا رہے ہیں. بالکل, ملکیت بھی بنا اور رہے وہ ہیں, ماں باپ, اتھارٹی دے رہے ہیں, اور ایک تلوار جو ہر عورت پہ کھڑی. گجرانوالہ میں ایک جگہ ہے جہاں میں پلا بڑا ہوں, ٹھاکر سنگھ دروازہ ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون صاحب تھے. گھر میں بہن تھی, ایف ایس سی کا طالب علم بھائی تھا. یہ پستول کی جو غلطی سے گولی چلتی ہے یہ اسی بچی کو کیوں لگتی ہے جس کی شادی ہونا ہوتی ہے یا جو کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہوتی ہے. گولی چلی اور وہ بچی مر گئی. اور میں نے پہلی دفعہ اپنے کلاس فیلوز کو کہتے سنا, وہ کہتے کہ میری عزت کا سوال تھا. اور میں نے اپنی ماں کو, میری والدہ بہت کم میرا ربط رہا ہے ان سے, اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں گھروں میں, لیکن وہ میری پھوپھی سے سرگوشیاں کھا رہی تھیں جو میں نے سن لی کہ اگر اتنی ہی غیرت تھی تو بہنوئی کو مارتے نا. اس کا مطلب ہے دا گرل واز پریگننٹ, اور بردر ان لا نے یعنی کسی بہن کے میاں نے وہ ریپ کیا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ باپ مدعی بن گیا اور وہ بچہ جو ہے وہ رہا ہو گیا, لیکن وہ بچہ پاگل ہو گیا. آئی اسٹل کین. کون سا بچہ پاگل ہوا ہے؟ جس نے مارا تھا؟ جس نے مارا تھا. وہ بچہ جو اتنا بریلینٹ تھا, اتنا برائٹ تھا, پر اتنا اس پہ غیرت. باپ اس کا ریٹائرڈ فوجی تھا, نان کمیشن افسر تھا, اور نہایت بدی گو تھا. بدی گو سمجھتے ہیں نا, ود اے ویری فاؤل لوز ٹنگ. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے کہ وہ میرے ابا کے ساتھ بیٹھ کے سارا وقت بیٹھے, وہ سگریٹ پی رہے ہوتے تھے اور فضول گفتگو ہو رہی ہوتی تھی, اسی قسم کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی. یا تھڑوں پہ بیٹھ کے دکانوں کو یہی گفتگو ہوتی تھی. تو وہ قصاص اور دیت والے کیس کا سہارا لے کے سرور صاحب رہا ہو گئے, چونکہ وہ مدعی بن گئے اپنی بیٹی کے خون کے, اور انہوں نے معاف کر دیا. یہ اس پہ قندیل بلوچ والے کیس میں بھی یہی ہوا, آپ کو یاد ہے اس پہ. یہ 2002 میں جو زعفران بی بی کا کیس تھا, بے نظیر واز ان دبئی ان دوز ڈیز, ہی واز ان ایگزائل, شی واز مچ کنسرنڈ. فرحت اللہ بابر صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ بے نظیر نے کہا کہ دی وکٹم از بینگ پرسیکیوٹیڈ, وکٹم واز بینگ پرسیکیوٹیڈ. پہلے سسر نے
गांव के एक बंदे का नाम लगाया। फिर जब केस खुल गया कि देवर है, तो फिर मियाँ ने एफिडेविट दिया कि जी मैं जेल में गार्डनिंग करता था, जेल के अंदर वो जो लाइट मुशक्क़त दी ठीक है। जाती है, और मेरी बीवी मुझसे मिलने आती थी, वहाँ प्रेगनेंट हुई है। ये आपने फर्स्ट टाइम पे ये एफिडेविट क्यों नहीं दिया? मुझे एक यहाँ पे सवाल ये मैं ज़रा करना चाहती हूँ कि सबसे पहले क्या वजह है कि जब भी औरत किसी भी ज़्यादती को पब्लिक में बयान कर ही देती है, अगर क्यों उस पर यकीन नहीं किया जाता? जबकि अगर आप स्टैट्स में भी देखें तो झूठ बोलने वाली खवातीन कोई 2 से 3% है। Why would they put Yeah. themselves to this And standard? why do Unwanted life. everybody sort of unite against her? ये मैंने हर तबके में देखा है, ये मी टू मूवमेंट के बाद भी मैंने देखा है। Yes. जबकि आपको कैरेक्टर का भी पता है, हम जानते तो जानते सबको ही हैं। होते हैं कि कौन केपेबल है, लेकिन फिर भी तर्स और सपोर्ट मर्द को दी जाती कि हाय उसकी तो रोजी रोटी, उसके तो ख़ानदान का क्या कसूर है। वाई? ये इंसाफ औरत के लिए क्यों इतना मुश्किल है देना? मैं आपको एक तकलीफ की बात अर्ज कर रहा हूँ। आई हैव बीन क्लोजली एसोसिएटेड विद जुडिशरी एट डिफरेंट लेवल्स। सबॉर्डिनेट जुडिशरी में भी तो खैर बिल्कुल ही बेड़ा कर रखा है। हाई कोर्ट के लेवल पे मुल्तान बेंच होता था, लाहौर सीट होती थी मुल्तान में, लाहौर हाई कोर्ट की। एक गरीब औरत पेश होती है जो कि विक्टिम थी डोमेस्टिक वायलेंस का। वो जज साहब गए हुए थे यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के, और उसको बेचारी कहती मुझे दारुल अमान भेज दें। हालांकि हमें पता है दारुल अमान में कितनी अमान होती है, वी नो। तो जज साहब उससे कहते बीबी दारुल अमान तेरे जैसी औरतों के लिए नहीं बने। इससे ज़्यादा गलीज़ गुफ्तगू मैं हाई कोर्ट के जजेस के मुंह से सुन चुका हूँ। आपने अभी ईमान मज़ारी के इसमें नहीं सुना था कि किस तरह बात की गई थी उनसे? और लेकिन ये मॉरल पुलिसिंग और बॉडी के राइट्स ये मर्द कैसे तय कर रहे हैं? क्योंकि लॉज तो मर्द ही बना रहे हैं। इसमें जो है ना अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं इसमें। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। एक यस, एट द एंड ऑफ द डे तो सियासी ताकत भी जो है वो इकोनॉमिक्स में जाके मिल जाती है ना। तो इसमें वो है, इसमें औरतों को जो है ना वो स्टेटस का मसला पेश आता है। ये ताकतवर मर्द है, मैन विद एक्सेस कॉरिडोर्स ऑफ पावर, ठीक है, पॉलिटिकल उसकी है, वो थाने में जो। मैं हैरान होता हूँ। वैसे तो इस पर अनगिनत किताबें लिखी गई हैं कि वाई डू women opt for a man who is known to be violent and a bad boy? ये है They get attracted to alpha man. अल्फा मैन, Yeah. दी मैन। आई थिंक ये जिबिल्ली है कि टेस्टोस्टेरोन जितना होता है उतना ही अग्रेसिव मर्द होता है। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम है। जो विक्टिम है वो पावरफुल जो है उसके साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, उसको अपना प्रोटेक्टर समझना शुरू कर देता है। नहीं, आपकी अट्रैक्शन जब जिस लेवल पे होती है उसमें तब तक आप विक्टिम नहीं होते, तब तक आप वही एंजॉय कर रहे होते हो। रियलाइज बहुत लेटर इन लाइफ आप करते हो कि मैं तो विक्टिम हूँ। यस यस यस, मच लेटर, Much later. But why is this attraction women have for these men? आपकी क्या इस पे स्टडी है? जंगल वाला कि he is a protector. He's a protector. He can run faster. और अभी तक मैं औरतों को ये कहते हुए सुनती हूँ कि मर्द प्यार करता है तो गालियाँ देता है, हाथ उठाता है तो वो पोजेसिव है। एंड इन आवर टाइम्स व्हेन वी वर यंग, हमें भी ये बातें नॉर्मल लगती थी। हाय प्यार करता है तो तुम्हें मना करता है ना कहीं बाहर जाने वो से। उसकी गैरत जाग जाती है। हाँ हाँ, है ना, वो देखो तुम्हें कितना वो चाह रहा है कि वो चाहता नहीं। नाउ जो हमारी बच्चे हैं, ये जनरेशन है, दे आर टोटली डिफरेंट। बट अगेन कुछ चीज़ें फितरी होती हैं जिनको कंट्रोल आप वक्त के साथ साथ जो सोसाइटी के रूल्स बनते हैं आप करते हो। लेकिन क्या वजह है मर्द इतना नाकाम है अभी तक? उसे अभी तक रफाकत की, पार्टनरशिप की डायनामिक्स समझ नहीं आई। हाउ कैन अ पार्टनरशिप बी म्यूचुअली ग्रेटिफाइंग एंड हाउ कैन इट अलो बोथ पार्टनर्स टू रियलाइज देयर पोटेंशियल?
अकम्पलिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है ना। सर, तो ये ऑनर औरत की मर्द के कंधों पे आपके ख्याल में हिस्ट्री में कब पड़ी? मलकियत है। जायदाद से? मलकियत है, प्रॉपर्टी है, चैटल है, मवेशी है, ज़मीन की तरह है। और उसमें एक बहुत अहम जो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि जी वो हमारी जायदाद जो है वो किसी और को भाई मैं तो इतनी बात जानता हूँ कि जिस दिन ये ज़्यादा लोगों के ज़्यादा बड़ा नमूना बन जाएगा, डीएनए का पता चलेगा कि कौन कौन जो है वो, मैं आई कांट गो बियॉन्ड दैट। मेरे ख्याल में बहुत से जो है ना वो राज एमडी तासीर का एक अच्छा शेर है, अगर आप इजाज़त दें तो सुना देता हूँ। दावरे हश्र मेरा नामा या अमाल न देख, दावरे हश्र मेरा नामा या अमाल न देख, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। सिर्फ पर्दा नशीनों के नहीं, बारिश के भी नाम आते हैं बड़ी बड़ी मूँछों वाले नाम भी आते हैं, ऊंचे शिमले वाले नाम भी आते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले नाम भी आते हैं। है ये सोसाइटी जो है ऑल ओवर दिस अक्रॉस द जियोग्राफिक जोन्स, इट्स अक्रॉस द ऑल क्लासेस। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई अमीर आदमी जो आई रिकॉल एक हाई कोर्ट के जज साहब होते थे, उनकी वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला था। जब उनकी डाइवोर्स हो गई तो मैंने उस खातून को, मेरी कोलीग थी, मैंने मुबारकबाद दी कि भाई आप एक अनहैप्पी मैरिज से आपकी जान छूट गई है। तो मुझे याद है कि जो फेमिनिस्ट खातून हमारे ग्रुप में थी, हमारे कोलीग थी, उन्होंने मुझे जो कुछ बुरा भला कहा कि उसको शर्म नहीं आती, कि मुबारकबाद देने वाली बात है, मुबारकबाद ना दूँ तो और क्या करूँ। बस इसके लिए इतनी हमारे अंदर पैट्रियार्की एंड डॉक्ट्रिन है, और आप यकीन करें जितनी मर्दों में है ना, कुछ औरतों में उससे भी ज़्यादा। मेरी माँ कहती थी ना एक बात, जब मेरे अब्बा जो है वो वुड फ्लाई ऑफ द टेंजेंट, मेरे बच्चों का बाप है, बच्चों का बाप तो अब यू कैन फाइंड एनीवेयर, इसमें ऐसे कौन सी बात है, ये तो कोई ऐसा एहसान कारनामा नहीं है, कारनामा नहीं है, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग। तो ये होता है, बच्चों का बाप है, क्या वो अच्छा बाप है, इस पे क्यों नहीं गुफ्तगू। देखिए जो बहुत अहम बात है ना इफ़त बीबी, हमें बतौर शहरी के, बतौर इंसान के, हम सबका एक जैसा एहतराम चाहते हैं, वो पादरी हो, मुल्ला हो, पंडित हो। लेकिन अगर कोई हमसे मफरूज़ा, प्यूटेटिव, एस्यूम्ड, प्रिज्यूम्ड तकदीस के नाम पे चाहता है कि हम उसके अपनी क्रिटिकल फैकल्टी सरेंडर करें, तो हम नहीं करेंगे। वो जो गालियाँ देना चाहते हैं दे लें, जो इल्ज़ाम देना चाहते हैं दे लें, हम मुल्ला के सामने सरेंडर नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि मुल्ला को ना लॉ का पता है, ना मुल्ला को पॉलिटिक्स की डायनामिक्स का पता है, ना मुल्ला आज के इल्म से वाकिफ़ है, ना मुल्ला इंसानी इर्तिका से वाकिफ़ है। जब मैंने इसे मुल्ला कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसका इसमें पंडित भी शामिल है, इसमें पादरी भी शामिल है। आज भी कैथोलिक चर्च जो है वो अबॉर्शन में के खिलाफ है। जब वो हमारी और रूल्स मर्द बना रहे हैं, उनको क्या पता है कि औरत उस वक्त किस चीज़ से गुजर रही है। इनको नहीं पता कि वर्क प्लेस पे ये जो है कि लो बैठ गई वाला जो मामला है वो हमने देखा हुआ है, हमने देखा हुआ है, हमें पता है। पहलू से आपको आपके जेंडर पे तंग किया जाता है। बिल्कुल। आप चाहे कितने बड़े एक्ट्रेस भी हों, मॉडल भी हों, पॉलिटिशियन भी हों, हर औरत को मर्द अभी तक अपने से कमतर समझता है। मीडिया हाउसेस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में अनफॉर्चुनेटली वो क्या है कि मेरा मेका हो या ससुराल, मुझे दोनों तरफ का, आई नो बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर। जो मीडिया हाउसेस में माहौल है वो एकेडेमिया में है, बिल्कुल हर इंस्टीट्यूशन में है। और हमारी लैंग्वेज जो है उस पर हमें कंट्रोल नहीं होता। हमारे मजाक बताते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। एक खातून जिस पे मुझे बहुत, जिसे मैं माफ़ नहीं कर सकता सोसाइटी को, जिस पे उसने वो कैलीग्राफी जिसे पढ़ने की भी तहजीब नहीं थी, उन्हें कि ये हलवा लिखा हुआ है जी। हम उस पुलिस ऑफिसर को, शी डिड अ गुड जॉब, शहरबानो नकवी, फाइन, शी डिड हर जॉब, हीरो बन गई थी। वो हीरो बन गई। माफ़ी हमने उस बेचारी खातून से, उन मुल्लाओं से उसने माफ़ी मांगी है, अभी भी यही हुआ है।
आईना वजीर वाले मैं मामले में। उसी पे आ रही थी। अब ये सोशल मीडिया एक और दुनिया है, और औरतें, बच्चियां, लड़कियां उस पर अपनी थोड़ी सी एक्सप्रेशन ले रही हैं, अपनी स्पेस ले रही हैं। जी, लेकिन ये आयना वजीर केस क्या था? वो तो एक मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, और वो बच्ची थी। बच्ची थी, और उसका बाप पिछले साल जुलाई में मारा गया है तालिबान के हाथों। जी। और उसका जुर्म क्या था कि वो पढ़ाने से बाज नहीं आ रहा था। उस्ताद उमर गुल उसका नाम था। ये तो एक और आप समझे वही कहानी बन गई मलाला वाली। ये मलाला वाली कहानी। इसके अलावा भी मेरे तो अपने स्टूडेंट जो है वो खैबर एजेंसी में जरतीफ़ आफरीदी मर्डर, पता क्यों? उसका जुर्म क्या था? वो एक अमन मुशायरा मुनक्कद करना चाहता था। उसी दिन उस बेचारे की तरक्की हुई थी। आई नो ही वॉज अ ब्राइट। ये पख्तून जो है ना, ये बहुत ही खूबसूरत लोग हैं। इनको एक बात समझ आ जाए, ये इनके अंदर ये इतनी अना है कि दे वंस दे अंडरस्टैंड अ पॉइंट, दे हैव द कैपेसिटी एंड द करेज टू स्टैंड फॉर इट। वो बच्चा 1983 में रशिया जा रहा था पढ़ने के लिए। ही डिसाइडेड, ही ऑप्टेड फॉर हिज ओन पीपल, और वो वहाँ पढ़ा रहा था। स्कूल में उसकी 17th ग्रेड में तरक्की हुई थी। मोटर बाइक पे वो जा रहा था, किल्ड। हमने तो ये जनाजे उठाए हैं ना, एक एक शहर में जो है। मुल्तान में राशिद रहमान, 40 लाख की आबादी का शहर मुल्तान, उसमें लोगों को पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने की थी, किन्होंने उसे धमकियाँ दी थी अदालत के अंदर। और जज साहब जो है वो नोन हैं, वो लोग नोन हैं जिन्होंने धमकियाँ दी थी। उनके अखबारात में प्रेस कॉन्फ्रेंस छपी थी। और जब राशिद रहमान की डेड बॉडी लाई गई तो पता क्या हुआ? ये लोग एक हजूम की शक्ल में आए और उसके दरवाजे पे, गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर ढोल बजाया। और जनाजा भी कोई पढ़ने को तैयार नहीं हुआ होगा, छुपके किया गया होगा। ये कहा गया कि ये जल्दी करें, सिक्योरिटी का इशू है। शबीर शाह गुजरात यूनिवर्सिटी में मारे गए सिर्फ इसलिए कि मारने वालों को पहचान नहीं थी कि ये निज़ाम साहब नहीं हैं, ये शबीर शाह हैं। ठीक है। मतलब मिशाल खान केस इतने अच्छा, ये कोहस्तान के वीडियो केस जो था, ये यकीन देखिए, बाइबल में एक बहुत अच्छा जुमला है, तुमने हवाएं बोई हैं, आंधियाँ बोई हैं, यू सोन विंड्स, यू विल हार्वेस्ट विंड्स। तुमने आंधियाँ बोई हैं, तुम बगुलों की फसल काटोगे। 2012 में 5 बच्चियाँ, जुर्म क्या था? एक शादी की तकरीब में कोई डांस कर रहा था, मर्द औरत बन के डांस कर रही थी और ये तालियां बजा रही थी। ये तालियां बजा रही थी। वो हमारी बहन है फरजाना बारी, इस्लामाबाद में, वेरी ब्रेव वुमन। ताहरा अब्दुल्ला, बहुत ये औरतें जो है, इस मुल्क को एक दिन इनका एहसानमंद होना पड़ेगा। इनको इनका एहसानमंद होना पड़ेगा क्योंकि ये इन्होंने अपनी जानों को उसमें दाव पे लगा के इस मुल्क को यहाँ तक लेके आई हैं। बिल्कुल। ये किसी ने तश्ती में रख के जहाँ तक भी हम आए हैं, तश्ती में रख के हमें नहीं दिया। ठीक और है। अभी भी कहाँ ही आ गए हैं, वो जो- अभी भी जो 16 तक ही आए हैं। 16 तक ही आए हैं। 97 साल में 1 साल का फ़र्क पड़ा है। वो लड़का जो था अफजल कोहस्तानी, जिसका भाई उसमें मारा गया था, वो मुझे मिला। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है इस्लामाबाद में, वहाँ तकरीबात भी होती हैं, किताबों का मेला भी लगता है। एंड आई साहिब, वो जैसे होते ना हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मर्द, छोटा कद, सिनवी बॉडी, जैसे तार से बना हुआ, स्ट्रॉन्ग, बड़ी अच्छी नर्व्स वाला। और वो मुझे बता रहा था कि ये मुझे मार देंगे। नो सिक्योरिटी। 2019 में बिलाखिर उस बच्चे को, अफजल कोहस्तानी को, मार दिया गया। वो बस से उतरा और अड्डे पे। रियासत इस कदर कमज़ोर है इस चीज़ों के आगे। रियासत इस कदर कमज़ोर है कि मुल्लाओं को कमरा नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट में जाके चीफ जस्टिस को चैम्बर में ले जाके अपनी मर्ज़ी का फैसला लिखवाने की इजाज़त देती है अदालत। रियासत इतनी कमज़ोर है इसलिए कि रियासत कानी है, इसलिए कि रियासत जो है ना वो कम्प्लिसिट है, इसलिए कि रियासत को मुल्लाओं, उसका ये जो हमारी जहालत है, हमारी नाखानदगी है। हम दुनिया का वाहिद मुल्क है जो 70 बरस में एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स, एब्सोल्यूट इलिटरेट्स एंड एब्सोल्यूट नंबर 400% बढ़ा है। हम 3 करोड़ से 12 करोड़ पे आए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में
टोटल अनपढ़ लोग जो है, खानगी की डेफिनेशन आपको मालूम है, जी बिल्कुल, 12 एक करोड़ वो जो साइन कर लेते हैं उनको भी 3 करोड़ से हम 12 करोड़ पे लाए हैं और 2 करोड़ 80 लाख पीछे बैठे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। ये पॉलिसी है। और पढ़ा लिखा उसको भी कहा दिया जाता है जो सिर्फ अपना नाम लिख सकता जो अखबार पढ़ सकता है, अपना खत पढ़ सकता है, है, थोड़ा सा अटक अटक के भी, अटक अटक के पढ़ लेता है, ठीक है, उसको तो कहा उसको पढ़ा लिखा कहते उसको पढ़ा लिखा कह रहे हैं। उसमें हम जो है वो 60% पे आए हैं 25 करोड़ की आबादी में। आप गिन लें कि कितने बाकी बचते हैं, 40% कितने बनते हैं, 12 करोड़ बनते हैं। और दूसरा सर वो हम जेंडर गैप में भी 146 नंबर पे हैं, मतलब आखिर अफगानिस्तान उससे ऊपर हम हैं। और इस खत्ते में इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश में इतने बुरे हालात नहीं हैं। नहीं है। बुरे हैं वहाँ भी, पर इस कदर नहीं और इस नौयत के नहीं है कि ऑनर किलिंग्स हो रही हैं या इस नौयत के नहीं है। बांग्लादेश में और इंडिया में कुछ हिस्सों में भी है। सर पर परसेंटेज बहुत फर्क है, बहुत कम मतलब अगर हमारा कोई 24% है तो बहुत फर्क है, कोई डबल का फर्क हमने है। तो कानून की किताब में उनको छुट्टी दे दी है कि यू कैन मैनिपुलेट द लॉ। ये जो किताब कानून होती है, इसकी अहमियत ये है कि आप एक कोडिफाइड फॉल्ट लाइन तय करते हैं। टेनिस खेलते हुए गेंद पीछे चली जाए उस लाइन से तो कहते हैं ना कि ये ऑफ साइड हो गई है ना। बिल्कुल, ये कानून असल में यही करता है, समाज बदलने में देर लेता है, कानून को फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ता है बिल्कुल कि भाई आज क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ तो मैंने अक्सर जजेस को भी पर्सनल अपने जो वो समझते हैं उनके लहजे में वो रौनक और वो पेट्रियार्की, अगर इस कदर पढ़े लिखे लोग भी अब तक ये नहीं पहुंच चुके इस बात पे कि इंसान है दोनों और राइट सेम होने चाहिए। हम ये तो औरत नहीं कह रही कि मैं मर्द बनना चाहती हूँ और मर्दों को औरत बनना चाहिए, बस बराबर इंसान है विद हकूक डिफरेंट हकूक एक जैसे हैं। एबिलिटीज। सलाहियत एक जो जैसी- जायदाद तुम्हारे हिस्से में होनी ability चाहिए भी वो एक है मेरे में भाई, होनी चाहिए। एबिलिटी भी एक है, सिर्फ फिजिकल डिफरेंस है। एग्जैक्टली जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ ये कहा कि दे आर फिजिकली डिफरेंट बट दे आर इक्वल इन राइट्स, राइट्स एंड इवन इन इंटेलिजेंस, दिमाग सेम है। सेम है। इनसे कहें कि मादाम क्यूरी का मुकाबला कर जी। इनसे कहेंगे ये सिमोन दी बुआ के बराबर की किताब लिख के दिखाएं। ये जो हमारी उधर ईरान में बच्ची है जिसकी नोवेल लिखी है रीडिंग इन तहरान, कितनी बहादुर हैं ईरान की औरतें 2009 में, 2010 में, 2022 में, 2024 में वो फिर सड़क पे आती हैं। कितनी बहादुर हैं अफ़गानिस्तान की औरतें कि वो जनाजे में फिर वो मर्दों को आने नहीं देती जब स्टूडेंट डेथ की है। और कितने इंसानियत के मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने तालियां बजाईं, जिन्होंने जो है पेशावर में बैठ के ये कहा कि हम कंधार में बैठ के ये वीडियो कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, किया ना, ये हमारे पास मौजूद है ना। अपनी बेटियों की दफ़ा तो ये नहीं कर रहे हैं। अपनी बेटियां तो उनकी अमेरिका में पढ़ रही हैं, ठीक है। और मैं यानी वो सबकी बेटियां हैं तो मैं इससे आगे नहीं जा सकता, लेकिन ये कि ये जो भाई जो अपनी बेटियों के लिए सोचते हो वही दूसरों की बेटियों के लिए भी सोचो। ये हमारी जो फातिमा बीबी है जिसके दुपट्टे पे जो अपने पाँव रखा हुआ है पेटीआर के, हटाओ इसको, इट्स नॉट डिड। ये आईना वजीर जो है क्या जुर्म हुआ है? एक बच्ची 12 साल की वो बच्ची है, खेल रही है और अच्छा खेल रही है। आपने अगवा किया है और वीडियो बनाई है, जिरगा बैठा है। ये कैसे हो सकता है कि उस इलाके के लोगों को ना पता हो कि अगवा किसने किया है? वेयर इज द स्टेट? तो फिर तो सब मिले हुए हैं ना। और मैं स्टेट यही तो तो इज कह रहा हूं। नोवेयर, स्टेट इज नोवेयर। स्टेट इज नोवेयर एंड स्टेट इज कंप्लिसिट। अब आप ये भी देखें ना, मुझे अब मैं थोड़ा सा अगर सोचूं कि जब ये डिवीज़न हुई जी, तो जाहिर है ज़्यादा पावर में वही लोग ज़िम्मेदार थे जिनको तोहफे में ज़मीनें मिली, आके वो बड़े बड़े ज़िम्मेदार बने, ताकत उनके हाथ में, पॉलिटिक्स में भी वही थे। फिर अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट की, उनकी एक अपनी पावर है। इतना लिबरल जनरल था जिसको हम समझते थे मुशर्रफ, तो मुख्तारा माइक पे क्या बयान दिया था मुशर्रफ साहब ने? देता हूँ, वहाँ उन्होंने खड़े होकर कहा था कि पाकिस्तान में औरतें ग्रीन कार्ड के लिए रेप करवा लेती हैं। उसके बाद कनाडा के वाइस
प्राइम मिनिस्टर ने उनसे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। और जब वो लंदन में आए वहाँ भी यही सवाल हुआ, तो उन्होंने हमारे बहुत ही आला पाए के जर्नलिस्ट ज़ियाउद्दीन, उनके बारे में पब्लिक में कहा कि ऐसों को 2 टका देनी चाहिए। भाई उसकी ट्रेनिंग ही नहीं है, ही इज़ अ मिलिट्री मैन। और हालांकि not मैं civilian. पर्सनली उनकी फैमिली को भी जानती हूँ, दे आर रियली नाइस एंड लिबरल पीपल, ऐसा वालिद- कुछ भी वालिद और वालदा नहीं, दोनों। लेकिन समहाउ एक जोश के मौके पे या उनकी अपनी जो फितरी सोच निकली उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। दैट इज़ द लाइन बिटवीन कंटोनमेंट एंड द सिटी। छावनी आपको वो रेप केस याद है शाजिया, डॉक्टर शाजिया का? याद नहीं है कि उस कप्तान के लिए उसमें कौन था? यही बाद में निकलते हैं ना मामलात। मुबशर लुकमान था और वो मुहसिन बेग था। वो क्या कर रहे थे? वो उस बच्ची को और उसके मियाँ को जो समझा रहे थे कि आप मुल्क से निकल जाओ। ओके, यानी पायंदे थे उनके। पाइन ने यहीं रहना है, आप निकलो यहाँ से। अच्छा, ये दोनों मैसेंजर आए थे जी उनको समझाने। जी जी। ये जो बाद में ये अचानक निकलता है ना कि जी फलां साहब बहुत ताकतवर हैं, इस वक्त भी वो लोग मौजूद हैं। मोहसिन नकवी नहीं? फैसल बॉर्डर, हाँ। ठीक है। अच्छा सर, हम पे क्यों नहीं कभी चूज किया गया? हम भी कुछ कर ही सकते थे बल्कि बेहतर शायद काम भी नहीं, कर मैं नहीं कर सकता था। मजाक कर रही मैं हूँ। सीरियस ये, कर रहा हूँ कि आई वाज टू पुअर एंड सोशली टू मार्जिनलाइज्ड। और फिर मेरी जो नौजवानी की हरकतें हैं वो ऐसी हैं कि उनमें आप पे मुस्तकिल निशान लग जाता है कि ये किसी काम के नहीं है। इसके लिए ये एक महारत होती है। बगैरती की मैं शायद से लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूँ, मैं इस पर बेहसी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सेंसिटाइजेशन की कमी होना। अच्छा, अब मैं अगर आपसे जनरली पूछूं, यू आपका इतना नॉलेज है और आपने इतना कुछ देखा है, तब से लेके अब तक कोई फर्क आया है? आप नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ को खामोश करा सकते हैं, आप नाइंसाफ़ी का एहसास ख़त्म नहीं कर सकते। वो माँ जिसे घर में यक वक्त जो है वो तीमारदार से लेके फीडिंग लेडी, बच्चों की फीडिंग से लेके बच्चों की तीमारदारी तक, घर की सफाई से लेके खाना पकाने तक, शेफ़ से लेके जब कपड़े धोने वाली तक सारा कुछ करना पड़ता है। आपका क्या ख्याल है, उसको एहसास नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है? अगर मेरे ख्याल से तो इसको एज अ जॉब लेना चाहिए। अब ये मुझे नहीं समझ आती कि हाउस होल्ड वाइफ का कौन सा पेशा होता है, ये कौन सी जो है ना, डू वी पे हर? मैं एग्जैक्टली कह रही हूँ, वी शुड नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट कि ये बहुत खर्चा तुम्हारा बचा रही है, ये औरत तुम्हारे बच्चे भी पाल रही है, उन्हें बेहतर इंसान बना रही है, तुम्हें साफ कपड़े दे रही है, तुम्हारे पैसों की बचत कर रही है, पता नहीं क्या कुछ कर और रही तुम्हारे है, माँ बाप की भी देखभाल कर रही है। तो ये एक प्रोफेशन क्यों नहीं कंसिडर होता और इसकी एक पे क्यों नहीं इसकी मोनेटाइजेशन क्यों नहीं होती? एग्जैक्टली। ठीक है, ये हमने जो इतनी सारी ख़वातीन को उससे बाहर रखा हुआ है। इफ़त मैं क्लियरली समझता हूँ कि हम अपने मुआशरे को सही नहीं कर सकते इफ़ वी आर नॉट बीइंग जस्ट टू आवर सिस्टर्स एंड डॉटर्स एंड आवर मदर्स। ये बुनियादी सवाल है, क्या ये पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे है? क्या ये प्रायोरिटी है? प्रायोरिटी प्रिटेंड किया जाता है कि है, लेकिन होता कुछ नहीं। आपको वही मैं मीटू केस जो कह रही हूँ, प्लीज मतलब इससे बड़े लोग क्या होंगे, ये बहुत बड़ी खबर बनी। आप, मैं बता नहीं सकती कहाँ कहाँ किस पॉलिटिशियन ने असर डाला, कहाँ कहाँ किस जज तक ये हुआ। एक ओपन केस है, किया है, छेड़ा है, सबको पता है छेड़ा है, लेकिन वो बुरी बात नहीं है, इस पर सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, हमारे मुल्क में तो वो नाम जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो उछाला जाता है ताकि आने वाली नस्लों को ज़रूरत ना हो। अब बस वेरी यंग जब वो शहनाज कुलवाला केस हुआ है, मुस्तफ़ा ज़ैदी वाला, हाँ ठीक है,
وہ مجھے یاد ہے کہ اخبارات میں اس کی جو وہ تفصیلات آتی تھیں، بری عورت بری عورت بری عورت بری عورت بری عورت بری عورت، ٹھیک ہے، یحییٰ خان برا نہیں تھا، جی جنرل رانی بہت بری خاتون تھی، بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس ملک میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت بھی یہی قصہ چل رہا ہے. وہ جو خاتون ہیں ان کے نانا بھی ہمارے پرانے جاننے والے، ان کی والدہ بہت محترم، ٹھیک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جیسے معاشرے میں کوئی خاتون اس طرح کا الزام لگا سکتی ہے جبکہ اسے معلوم ہے کہ ہر نیم ول بیکم سینونیم فار بینگ اے بیڈ وومن. بیڈ وومن مطلب شرم بھی نہیں آتی، کون بتاتا ہے یہ کون کھل بتا کے کیوں باتیں کر رہی ہے؟ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی، اس پہ کرے گا، ہم پہ تو کبھی نہیں کیا. ارے آپ جانتے ہیں میرے خیال میں اس میں جوڈیشری کی سینسٹائزیشن، پارلیمنٹیرین کی سینسٹائزیشن. آپ کو یاد ہے جب رضا ربانی صاحب پارلیمنٹ میں سر ہوتے ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نسل در نسل اسی پیٹریارکل سسٹم. یار ان کا تو ڈریس کوڈ بتاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی. جی واسکرٹ اور اکڑے ہوئے کرتے اور معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی جو ہے نا وہ انہوں نے نہ ہل اینڈ دا چلایا ہے. ویمن آلسو، بس وہ اپنے آپ کو کہتی ہیں بہت بڑے خاندان کی ہیں اور باقی وہ روتی رہتی ہیں، پر مسئلہ کوئی نہیں ہے. مسئلہ کوئی نہیں مسئلہ ہے، کوئی ایز نہیں، لانگ ایز گھر میں کافی سارا سونا رکھا ہے. سونا آ رہا ہے، مطلب ان کے سامنے ان کے شوہر افیئرس چلا رہے ہیں بچیاں کام کرنے والیوں کے ساتھ. اور یہ جو فیوڈل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، اٹ از نارمل فار دیم. گاؤں والی ہے نا، وہ کم والی، وہ گاؤں والی ہے. اینڈ وہ گاؤں والی کو پھر جب وہ خود جب چل بستے ہیں بیکاز عمر ان کی زیادہ ہوتی ہے، تو پھر پیچھے اس گاؤں والی کے بچوں کو حق بھی نہیں ملتا. اور عجیب ہی ایک نفسہ نفسی ہے. یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں کہ یہ کنیزیں پاکستان میں 1956 میں ایک بیگم تھیں جوناگڑھ، انہیں عدالت کے اندر صرف یہ سزا دی گئی تھی کہ جب تک عدالت برخاست نہیں ہوتی یہ قید میں ہیں. انہوں نے اپنی ملازمہ کو نہایت بہیمانہ طریقے سے تشدد کروا کے مار دیا تھا. بیگم جوناگڑھ کا کیس 1956 میں فیصلہ ہوا اور تھا. کیا انہیں طیش آیا تھا؟ آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریکال، پرہیپس انہوں نے کوئی بچی جو بچہ کو پیدا ہوا تھا اس کو دیکھ لیا تھا اینڈ شی واز ناٹ سپوزڈ ٹو، اور اس کے ساتھ وہ کچھ کیا تھا جو پنجاب کا ایک گورنر عورتوں کے ساتھ کرتا رہا ہے. یا بھائی جس ملک میں آج تک لوگ کالا باغ کو آئیڈولائز کرتے ہیں، کیسے؟ ہر سیاستدان کے اندر ایک کالا باغ چھپا ہوا ہے. کالا باغ بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر تھا. اور وہ کیا تھے؟ مغربی پاکستان کا گورنر تھا. نہیں، حرکات کیا تھی؟ حرکات ان کی جو تھیں وہ ان کے صاحبزادے نے جو انہوں نے مرڈر کیا اس سے معلوم ہو جاتی ہیں. وہ میاں والی کے تھے، کالا باغ کے تھے، پیٹیار. آپ کو لگتا ہے 50 سال تک چیزیں چینج ہوں گی؟ لینڈ ریفارمز ہوں گے اس ملک میں؟ نہیں، لینڈ ریفارمس اب نہیں ہو سکتی. اب ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے اب زمینیں خرید لی ہیں. وہ جو جاگیریں دی ہوئی تھیں وہ آگے بک گئی ہیں. وہ بک گئی ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بھی اظہار پوڈ کاسٹ کی ایک لمٹ تو ہے نا. میں نہیں بتانا چاہتا، میں نہیں بتا سکتا، بتاؤں بھی تو شاید وہ آپ کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے، میرے لیے بھی شاید، کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے جو نیا جاگیردار طبقہ پیدا کیا ہے، کو کتنی زمینیں کہاں دی ہیں. سب کو پتہ ہے. اینڈ دے اسٹل تھنک کہ ہم پتہ نہیں کہاں کے سید ہیں اور ہماری گدی نشینی کا کانسیپٹ ابھی تک ہے سر. اور وہ پیسے دیتی ہیں، ان کی بیویاں ان کو وہ لکھ کے دیتی ہیں جو خود رو رہی ہیں کہ میاں ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں. وہ گاؤں کی عورتوں کو میاں کو کیسے قابو میں کرنا ہے کہ وہ لکھ کے دے رہی ہیں. وہ لکھ کے دے رہی. کیا میں بھی آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ جی. یہ فرمائیے کہ یہ تعلیم یافتہ طبقے میں یہ جو دماغ کا پوپلا ہونا ہے، سپرسٹیشنز ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب وہ جو ہماری پوری نسل کو خراب کر گئی، فرحت ہاشمی، وہ کینیڈا میں بیٹھی ہے، جی، اور وہاں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں. جو بھی کر رہی ہوں ہماری جان چھوٹی. ایسی میری دوستیں تھیں جو ایک معقول مطلب
दुआ करना, इबादत करना हमेशा चलता हमने देखा है हमारे बचपन में. द डिस्प्ले नाउ एक मुख्तलिफ लिबास ओढ़ना और अपने आप को सुपीरियर समझना, पारसाई का और मुझे जो पता है तुम्हें नहीं पता का, ये समझ भाई मुझे क्यों नहीं पता, मेरा अपना मुशाहिदा है. ये कहते मुझे क्यों नहीं पता, आपको ये क्यों लगता है? हाँ, हम जानते हैं, आप नहीं जानते. अच्छा भैया, आप में ऐसे कौन से फुंदने लगे थे कि आप पे ये आई थिंक ये भी पारसाई उतरी है? वजाहत साहब, ये भी मुझे लगता है एक तरह का अपने आप को वही सेटिस्फाई करने के लिए एक सोच है, सुपीरियरिटी दिखाने के लिए. और तो कुछ होया नहीं, स्मोक स्क्रीन है. हाँ, कि चलो मैं करनी है. इस मुल्क में वो बिकता है ना. हमने अभी पिछले 15-20 बरस में कितनों को आते और जाते देखा है. फिर मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा वजह साहब ये नहीं लगता हमारी तो ज़िंदगी ज़ाया ही होगी, कुछ बदला ही नहीं. नहीं, मैं इस तरह से भी नहीं दिख रहा. मेरा ये ख्याल है कि आवाज़ें उठी हैं. ये जो हम यहाँ बैठे हैं, जो हमारी बच्चियाँ सड़क पे आके औरत मार्च कर रही हैं ना, मुझे याद है 83 वाली जो 12 फरवरी 83 था ना, उस वाली हमारी माँओं और बहनों की जो नारे थे, जो सोच थी, वो डिफरेंट थी. ये बच्चियाँ इससे आगे गई हैं. वो थोड़ा सा सोसाइटी में हुआ है, लेकिन प्रोसेस स्लो, बिकॉज उसके पीछे पॉलिटिकल जो है ना इम्पीटस नहीं है. मेरे ख्याल से तो अगेन एज यू सेड कि जब पावर इतनी होती है ना, तो ये चीज़ें बल्कि आपको और सही लगना शुरू हो जाए कि अल्लाह ताला का मुझ पे कोई ख़ास करम है, इसलिए मैं इतना कामयाब हूँ. एंड देन यू इतना बिलीव करना शुरू अपने तय करते कि शायद मैं एक स्पेशल इंसान हूँ. जी, ये एक्सेप्शनलिज्म जो है, वी डोंट एक्सेप्ट इट. ये क्यों भाई? तुम जैसे कहते हैं कि उसको हमने इतनी दुआएं कराई, उस बच्चे का कैंसर खत्म हो गया, तो वाई ओनली खराब है कि वो बाकी बच्चों का क्यों नहीं खत्म हुआ? फिर उन्होंने क्या बुराई की थी? माजरत चाहता हूँ, इसको बात लंबी हो रही है. बस आखिरी है कि भाई अगर एक हरा धागा बांधते हो ना दरख्त पे मन्नत पूरी होने पे, तो एक काला जो है मन्नत ना पूरी होने पे भी बांधो, ताकि हमें तनासुब तो मालूम हो. अभी भी सैड सी सिचुएशन ही लगती है. लेकिन वही वाली बात है कि एप्स्टीन हो, ये काला बाग हो, आयतुल्ला हो, जनरल रानी हो, वो मैक्सवेल है यहाँ की, MBS हो, और उसको जो है वो बेचारा खशोगी साहब जो है, उसकी बेवा वो बेचारी बैठी हुई है और ट्रम्प साहब उसको जो है वो मान के फरमा रहे हैं. तो ये जो दुनिया है, अभी इसमें बहुत कुछ कहने की ज़रूरत है, अभी इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है. अभी तो हम अपने हमसाए में एक बड़े मुल्क को डाउन दी गटर जाते देख रहे हैं, और हम करीब हैं. मतलब जो उनके करीब इलाके हैं वो उसी गटर में शामिल हो रहे हैं. बहाव वहाँ तक आ रहा है और ये हम देख रहे हैं. ये अभी जो केस आया है हमारी आंखों के सामने हो रहा है. इसका मतलब ये है कि जिस तरह से हमने आज़ादी नहीं समझी थी, उन्होंने भी रिपब्लिक का और आज़ादी का मतलब नहीं समझा. और कितनी ये अजीब सी एक ही मुल्क जहाँ पे अभी बैठ के मैं और आप इतनी पढ़ी लिखी बातें कर तो सक रहे हैं, उसी मुल्क में एक बच्ची की बोलिंग की वजह से लोगों को अगवा किया जा रहा है. क्या आपको याद नहीं कि और ये मकबूल जान ने वो बच्ची के इश्तहार में आई थी, बॉल कर रही थी, उसमें जो इनकी नज़र गई है जहाँ तक, वहाँ तक हमारी क्यों नहीं जा रही? हमारी क्यों नहीं गई? इतनी दफ़ा वो देखा था ऐड, व्हाई कुडंट आई सी दैट? आप बचपन से बच्ची को सेक्सुअलाइज कर देते हैं, उसको इतनी सी बच्चियों को आपने कवर किया हुआ है, तो अगला बंदा सेक्सुअल निगाह से ही बच्ची को देखेगा ना. वो आप लिबास ही ऐसा पहना रहे हैं कि शी इज़ ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट ऑफ, कि हाँ ये पर्दा कर रही है बिकॉज ये औरत है और इसके साथ ये हो आपने गौर फरमाया कि हमारी सड़क पे चलती हुई बच्ची जो है वो कैसे चलती है? ऐसे चोर चल रहा होता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता. बहुत बहरहाल मैं वही वाली बात है कि अगेन औरतों के हाथ में जो सबसे बड़ी पावर है ना, वो है कि वो मर्दों को भी तरबियत देती है. माएँ अगर दें, माएँ अब ये पावर लें अपने हाथ में कि कल को ये बच्चा औरत के साथ कैसा पेश आना चाहिए, अपनी महरूमियाँ दूर करें,
آگے بہتری لانے کی کوشش کریں. mothers یہ بہت زیادہ ضروری mothers ہے. can teach. یا اور مدرس کو یہ سمجھنا کہ ان کے ایک جسٹ زندگی عورت کی کیسی ہونی چاہیے, یہ احساس اب ہو جانا چاہیے. ہمارے نصاب میں یہ چیزیں آنی چاہیے, ہمارے اسکول میں آنی چاہیے. سر بات ہی نہیں ہو سکتی, ابھی تو بات نہیں ہو پا رہی. نہیں ہو سکتی. جو تھوڑی سی بات کرتا ہے وہ مشال بن جاتا ہے, جنید بن جاتا ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں یا آنر کی یا بلاسفمی کی تلوار ہے جو کبھی کسی پہ بھی چل سکتی. ایک وہ بچہ ہے نارو جو 2 دن بعد عمران خان صاحب کے حلف اٹھانے کے 18 کو حلف اٹھایا تھا, 20 کو وہ غائب ہوا ہے. بہت معلوم کیا ہے. ہلری کلنٹن نے 2010 میں جب وہ پاکستان آئی تھی ایک جملہ کہا تھا, آئی ڈونٹ بلیو دیٹ نو باڈی ان پاکستان نوز ویئر اسامہ بن لادن از. ویسے آئی آلسو ڈونٹ بلیو, پتہ ہی ہوگا کیسے ممکن ہے. نیدر ڈو آئی. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کی گفتگو. تھینک یو سو مچ, کیونکہ میرا بڑا یہ کتھارسس کا دل تھا اور آپ بہترین انسان تھے جس سے میں یہ گفتگو کر سکتی تھی. اینڈ تھینک یو سو مچ, اور ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. اینڈ ہم یہ سلسلہ بھی جاری رکھیں گے, ہمیں آواز بھی اٹھاتے رہنا ہے. سر اسی تو بہت ہی اٹھا رہے ہیں, ہماری آواز سنتے نہیں سر, کیونکہ ہمارے پروگرام میں وہ والی بات نہیں ہے جس کے ملین ویوز ہوں. ہمیں 5-6 ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں, یہی بڑی بات ہے, ورنہ نہیں بولا جاتا وہ والی باتیں جو ہمیں وہی کافی ہیں. بہت. وہ بہت آئی تھنک ایولیوشن میں میرا اور آپ کا, ہم جیسے لوگوں کا یہی حصہ ہے کہ جو بہتر لگا ہے اس پہ بات کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش. اور لوگ خود ہسٹری میں ونڈیکیشن ہو جاتی ہے. ہسٹری جو ہے وہ بتا دیتی ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا 82 میں. اب مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں, مانتے ہیں کہ حدود آرڈیننس جو ہے وہ انجسٹ تھا. انجسٹ, اٹس اے کروئل آرڈیننس, کروئل. کتنی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں, کتنے ظلم اور ہوئے. ہماری عورتیں 1980 میں یا 79 میں جہاں تھی اس سے پیچھے آئی ہیں. سر یہ مطلب 70s کی میں بورن ہوں, اس زمانے کی اپنی ماں, ان کی سہیلیاں, وہ لبریشن, وہ تھاٹس, اور آہستہ آہستہ جب جوانی میں 80s تک ہم ہلکے ہلکے جوان ہوئے, دنیا بدل چکی تھی. یس, وی ور اسٹانشڈ کہ ہم نے اسکول کی ٹیچرز کو لمبے والا کوٹ پہن کے بڑے احترام کے ساتھ اسکولوں میں جاتے ہوئے, کالج میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارا جو شہر تھا وہاں پہ ایک ہیڈ مسٹریس تھی, مسز کاظمی. یس, دی ہول سٹی وڈ ریسپیکٹ ہر. اور جو جاتی تو ایسے معلوم ہوتا تھا. اب تو جو ہے نا کوئی منسٹر بھی جا رہی ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے, کیونکہ ہم نے جو ہے نا وہ وی ہیو بین ایوری تھنگ اراؤنڈ می از سو فاؤل دیٹ آئی ہیو بین کانسٹنٹلی لوورنگ مائی آئیڈیلس. تو ہم نے جو کسی منصب کا, کسی اس کا احترام چھوڑا نہیں ہے. ہم اسی طرح بولتے رہیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے. کوئی بات آپ کے دل کو لگے اس پہ عمل کریں, اور اپنے بھی سوال اور سجیشنز ہمیں لکھ کر بھیجیں, اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اور کون سے ٹاپکس پہ گفتگو سننا چاہتے ہیں. اور میں نے آج بہت کوشش کی ہے کہ میں بیچ میں گیسٹ کو انٹرپٹ نہ کروں, لیکن جانے سے پہلے میں پھر آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں. یہ شو از ناٹ این انٹرویو, اٹس اے کانورسیشن. اور میرے ذہن میں جو جب سوال آتا ہے میں چاہتی ہوں پوچھے, تاکہ کلیریفائی ہو کے گفتگو آگے پہنچے. تو معافی کے ساتھ آج کا پروگرام اینڈ کرتے ہیں, اور بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا.